Hello children, I welcome you to the last phase of this chapter, The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. In this module, we've already done two parts, phase 1 and phase 2 of the recording of this entire chapter and explanation. I've read the entire chapter partially in phase 1 and phase 2, and I've given you a brief about how to deal with the characters and what to look for when we'll be doing this chapter. So please, if you have not seen my video 1, phase 1 and phase 2 of this chapter, please shift back to those two videos, view them and then join us for this phase 1 ताकि आप समझ सकें कि हम जो बातें कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं और हम पहले कौन से पॉइंट्स को कवर करके आए हैं. सो वी प्रोसीड. एक क्विक समरी करते हैं. The narrator's grandmother and late grandfather are introduced. During childhood, he used to live with his grandmother. She who used to take care of him, take him to the village school, read scriptures during the time, and feed stray dogs on their way home. Next. Then begins a turning point in their friendship. They shift to the city. The author joins a city school. Grandmother does not approve of city education. The author is provided a separate room where he joins the university, and there friendship with grandmother almost breaks. She starts accepting her separation quietly. She starts feeding sparrows and spinning wheel throughout the day. Author goes abroad for higher studies. She sees him off, but she remains busy in reciting prayers. Next. The author returns after 5 years. Grandmother behaves in a very odd way. She gets overexerted, singing and thumping the drum. Even then, she keeps praying. She declares that she is about to die, and yes, she passes away soon. Her city friends, sparrows, seem to pay homage to the departed soul. Next. 2 short answers for practice on the basis of what you've done till now. What was the turning point in author's friendship with his grandmother? Very easy question. I'm sure you all will be able to write this. And similarly, next easy question. How was the grandmother's daily routine in her village life different from that in the city? So basically, I think these answers do not pose any challenge. Try कीजिए आप ये कर पाएंगे. Next. Now starts. वैसे we have already done a very in-depth analysis of all the points while we were doing phase 2. Yet I wish to combine and compile all those points that we've done. So let's proceed next. How does the chapter deal with the theme of friendship and companionship? Now we all know that grandmother was lonely in the village and grandson was a social support at that time, and her other friends were stray dogs and scriptures. Now the relationship changes when they come to the city. Son being given a new education and she did not know much about it. She feels deprived. वो उनको deprived मतलब कि जैसे उनसे कुछ ले लिया गया हो, वो ऐसा फील करती हैं, left out फील करती हैं. She misses the stray dogs, so she befriends the sparrows. अब उनसे grandson की दोस्ती भी कम हो गई और उधर से stray dogs भी नहीं है, तो new friends were sparrows. She sticks to praying. प्रेइंग वो करती रहती हैं. शी सीम्स टू हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन वर्ल्डली लाइफ, और बोलना कम कर देती हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि उनका वर्ल्डली लाइफ से, दुनियादारी से इंटरेस्ट खत्म हो गया था, काफ़ी कम हो गया था. नाउ व्हेन ग्रैंडसन गोज टू यूनिवर्सिटी, द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप ब्रेक्स. तब तो जो थोड़ा बहुत फ्रेंडशिप था वो पूरा टूट गया. सेपरेशन ऑफ रूम इज एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट करती हैं इस चीज़ को, बट शी स्टॉप्स इंटरफेयरिंग इन ग्रैंडसन्स लाइफ. फिर वो इंटरफेयरिंग कम कर देती हैं, अपनी ख़त्म कर देती हैं. इन द ग्रैंडसन्स एब्सेंस, जब वो व्हेन ही गोज अब्रॉड, तब उसकी एब्सेंस होती है, उस टाइम पे उनकी फ्रेंडशिप जो बर्ड्स के साथ है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है. ये हमें कैसे पता चलता है? शी कंटिन्यूज टू फीड दम लॉन्गर एंड विद फ्रिवलस रिब्यूक्स. जब ग्रैंडसन आके देखता है कि आज तो ग्रैंडमदर बर्ड्स को और ज़्यादा टाइम के लिए फीड कर रही हैं और अब उनके साथ बातें भी करती हैं, उनको कभी कभी झिड़क भी देती हैं, डांट भी देती हैं, तो इससे पता लगता है कि उन्होंने स्पैरोज के साथ अपनी दोस्ती बहुत अच्छी कर ली थी. He sees her celebrating by singing the homecoming of warriors tirelessly. ऊपर से वो ये भी देखता है कि वो अपनी एक्सप्रेशन, जो खुशी है उसके घर आने की, वो भी कैसे सेलिब्रेट करती हैं? गाने गा के, अबाउट द होमकमिंग ऑफ वॉरियर्स. और वो इतना गाते हैं कि वो उसी से थक के बीमार हो जाती हैं. सो व्हेन शी फाइनली डाइज, स्पैरोज डू अराइव एंड दे रिमेन नेक्स्ट टू हर. यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उनकी दोस्ती थी वो ऐसे ही नहीं थी. वो आती हैं और उनके पास रहती हैं, और जब उनको उठाया जाता है, एट दैट टाइम स्पैरोज फ्लाई अवे क्वाइटली. वो खाना भी नहीं खाती.
तो हम यहाँ देखते हैं कि फ्रेंडशिप ऑफ अ ह्यूमन इज आंसर्ड, कि एक इंसान की दोस्ती को जानवर भी आंसर करते हैं और बल्कि बेटर आंसर करते हैं, इज आंसर और रेसिप्रोकेटेड बेटर बाय बर्ड्स। देयर फ्रेंडशिप, इट इज देयर फ्रेंडशिप, हुज फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप ऑफ द स्पैरोज एंड द ग्रैंड मदर दैट हेल्प्स हर सर्वाइव। वो उस स्पैरोज की फ्रेंडशिप के साथ ही तो जिंदा रह पाती हैं। कब तक? तब तक जब तक ऑथर वापस नहीं आता, और ऑथर के वापस आने के बाद तो जैसे एज इफ शी वॉज वेटिंग फॉर हिज रिटर्न, और अगले ही दिन उनकी डेथ हो जाती है। तो दिस इज अबाउट द थीम ऑफ फ्रेंडशिप दैट आई कुड फाइंड। इफ यू कैन फाइंड मोर पॉइंट्स टू सजेस्ट, एंड डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी beneficial for you to write the answer next. अब ग्रैंडसन की हमने सारी वैल्यूज डिस्कस कर ली हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको कैरेक्टर स्केच के पॉइंट्स के साथ इलाबोरेट करके दे रही हूँ, तो इसको थोड़ा जल्दी करेंगे। पीस, सेरेनिटी, कंटेंटमेंट मार्क्ड ऑलरेडी इन द बुक, आपको साथ साथ कराया था। रिलीजियस हैं, रीडिंग स्क्रिप्चर्स, टेलिंग द रोजरी, रिसाइटिंग प्रेयर्स, वेरी अफेक्शनेट और रिस्पॉन्सिबल हैं, मदरली फिगर हैं, शी टेक्स कंप्लीट केयर ऑफ द ऑथर, वांट्स हर टू get good traditional values by learning prayers, she kisses her when he was to go to abroad, generous है, compassionate to other creatures है, sparrows और dogs का example है, she does not cross her limits, rather accepts them। इसमें example है कि she resigns from intervention when author goes to university, she is given a separate room and her suggestions for his education are not noticed, but she does not retaliate। वो लड़ती नहीं है, वो कुछ डिमांड नहीं करती हैं। नेक्स्ट, काम एंड कंपोज्ड हैं। हम पूरे चैप्टर में देखते हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं रही हैं उनके, हाँ, लेकिन अगर उनको कुछ बोलना है तो वो अपने साइलेंस से ही बात करती हैं। शी हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, ये एक लाइन आती है टेक्स्ट में। दिस इज अ पॉइंट दैट शोज कि वो काम और कंपोज थी, बोलना उनकी नेचर में नहीं था। कंजर्वेटिव, कन्वेंशनल, नैरो माइंडेड, इनोसेंट हैं, क्योंकि उनके जो व्यूज ऑफ एजुकेशन हैं वो बहुत डिफरेंट थे, पुराने थे, नए नहीं थे। म्यूजिक नहीं पसंद था, इंग्लिश एंड वेस्टर्न साइंस नहीं पसंद थी, और वो अपनी इन चीज़ों को बदल ही नहीं पाई। इन चीज़ों की वजह से वो साइलेंट होती गई। अपना रिलेशनशिप उनका ग्रैंडसन के साथ खराब नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, वीक होता गया, चुप होती गई, मन में बात रख ली उन्होंने, लेकिन शायद वो एक्सप्रेस ही नहीं कर पाई बिकॉज शी वॉज कन्वेंशनल। इंट्यूटिव थी, एक लाइन आपको मार्क कराई थी, एट हर एज नो वन कुड टेल बट द ग्रैंड मदर कुड। ये लाइन बताती है कि वो ऑथर के 5 साल पहले से ही अपनी मौत से बता सकती थी कि वो अभी नहीं मरने वाली। शी यर्न्स फॉर फ्रेंडशिप, अब उनको दोस्ती की भूख थी। आफ्टर हर फ्रेंडशिप विद ग्रैंडसन वीकन्स, शी सीक्स फ्रेंडशिप विद स्पैरोज बिकॉज डॉग्स वर नॉट देयर, ये भी एक इशारा में मिलता है चैप्टर में। हर फ्रिवलस रिब्यूक्स शो दैट शी वॉज सो लोनली, and in loneliness she wanted a friend whom she could scold, whom she could enjoy with, whom she could quarrel, whom she could take care of like she took care of the grandson। इन सभी चीज़ों के लिए उनको शायद एक बच्चे जैसा एक दोस्त चाहिए था। वो ग्रैंडसन में जब नहीं मिला तो उन्होंने स्पैरोज में ढूंढा, और स्पैरोज ने उनके इस प्यार और उनकी इस फ्रेंडशिप को बहुत रिगार्ड दिया। हमने दिस इज ऑल्सो वॉट वी हैव सीन। नेक्स्ट, एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमने बारी बारी बात की है ग्रेजुअल चेंज इन रिलेशन की। उसका क्या कॉज था और क्या इफेक्ट था, मैं आपको इस ग्रेजुअल चेंज के बारे में आई एम गोइंग टू टेल यू, डीलिंग विद द कॉज एंड इफेक्ट। क्यों चेंज आया? सबसे पहले हमें ये पता है लाइफ इन द विलेज कंप्लीट कंपेनियनशिप थी। चेंज डिस्कस करने से पहले हम ये देखेंगे ना कि वो बेसिस क्या था, पहला स्टेप क्या था, उसके बाद ही कुछ चेंज होगा, कुछ होगा तो चेंज होगा। तो पहले था कंप्लीट कंपेनियनशिप। ग्रैंड मदर नेवर लेफ्ट ग्रैंडसन अलोन एंड शी वुड अकम्पनी हिम एवरीवेयर, ये तो उनका फर्स्ट बेसिक था। अब ये चेंज होता है। लाइफ इन द सिटी, बोथ सॉ लेस ऑफ ईच अदर एंड ग्रैंड मदर डिड नॉट लाइक द स्कूल एजुकेशन, ये कॉज बना। इस वजह से इफेक्ट क्या हुआ? हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, शी स्टॉप्स टॉकिंग टू हिम, ये उसका इफेक्ट आया कि वो चुप हो गई, शी स्टॉप्ड टॉकिंग। उसके बाद फिर चेंज आया, ऑथर जॉइन्स यूनिवर्सिटी एंड वाज गिवन अ सेपरेट रूम। अब ये चेंज, ये कॉज बना। इस कॉज से क्या इफेक्ट आया? फर्स्ट, कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप ब्रेक हुआ। एक्सेप्ट, ग्रैंड मदर ने अपने कंक्लूजन को एक्सेप्ट किया, पर उन्होंने रिजाइन भी किया। रिजाइन किया मतलब गिव अप किया। गिव अप किस किस बातों पे किया और कैसे कैसे वो रेजिग्नेशन शो होता है, वो टिक मार्क लगाए थे। रेयरली स्टॉप्ड स्पिनिंग, केप्ट रिसाइटिंग प्रेयर्स होल डे, befriended sparrows, took half an hour break from spinning to feed them sparrows only, enjoyed their company, did not shoo them away। ये सब शो करता है कि कैसे उनकी नेचर बदल गई। क्यों बदली? सेपरेट रूम की वजह से। वो कॉज था, ये इफेक्ट था। नेक्स्ट स्लाइड।
आगे, ऑथर गोज अब्रॉड, अब ये कॉज बना अगले चेंज का। इसका इफेक्ट क्या हुआ? शी डज नॉट शो एनी इमोशन, नो सेंटिमेंट्स, ओनली प्रेयर्स, जस्ट किस्ड हिम ऑन द फोरहेड एंड दैट ऑथर थिंक्स इज द लास्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट। तब क्योंकि उनको लगा वो मर जाएंगे उनके वापस आने तक। नोट द चेंज फ्रॉम चाइल्डहुड, अब यहाँ आपको चेंज एक बार मैं पीछे मुड़ के नोट कराना चाहूंगी। चाइल्डहुड में बेदिंग और फीडिंग था और अब उसे लगा कि अब तो ये लास्ट फिजिकल कांटेक्ट है, आज के बाद शायद ये मुझे टच भी नहीं करेंगी। उनका फिजिकल रिलेशन इतना वीक हो चुका था, उन्हें उन्हें अपने रिलेशनशिप की जो प्रोग्रेस है वो खत्म होती नजर आ रही थी। चलो लास्ट, ऑथर रिटर्न्स आफ्टर 5 years, ये एक कॉज था उनके लास्ट ऑड बिहेवियर जो बहुत ही चेंज्ड, लास्ट चेंज जो हमने ग्रैंड मदर की लाइफ में देखा वो था कॉज ऑथर्स रिटर्न आफ्टर 5 long years। और इसमें चेंज क्या था? अब नो टाइम फॉर वर्ड्स, उन्होंने बोला शी डिड नॉट हैव टाइम फॉर वर्ड्स, शी रिसाइटेड ओनली प्रेयर्स, शी क्लास्प्ड हिम इन हर आर्म्स बट शी डज नॉट टॉक, शी सेलिब्रेट्स हिज होम कमिंग इन हर ओन वेज। कैसे? फीडिंग sparrows longer with frivolous rebukes, number 1, singing and thumping drum for hours together and leaving her prayer for one day, then she catches fever, she foretells her death कि मैं मरने वाली हूँ, then she gets back to praying and says I will not talk, talking will be wasting time, and then it seems, इन सभी बातों से ये लगता है कि जैसे वो बस ऑथर के वापस आ जाने का इंतजार ही कर रही थी। उसके आने के बाद उन्होंने थोड़ी सेलिब्रेशन की, अपने दिल में कुछ बातें थी वो निकाली गाना गा के, एंड देन शी वॉज रेडी टू लीव, टू ब्रीथ हर लास्ट, टू डाई। नेक्स्ट, थीम ऑफ जनरेशन गैप, ये भी एक जी हमने स्टार्टिंग में लिखा था, मुश्किल नहीं है, मैंने आपको बट डाल के पूरा कॉन्ट्रास्ट करके 4 पॉइंट लिखवाए यहाँ पे। ग्रैंड मदर यूज टू टेल स्टोरीज ऑफ हर चाइल्डहुड टू द ग्रैंड चिल्ड्रन बट दे डिड नॉट बिलीव हर। रीजन जनरेशन गैप, बिकॉज दे कुड ओनली बिलीव वॉट दे सॉ, वो पुरानी बातें समझ नहीं सकते थे, उनको बिलीव ही नहीं करते थे, उन्हें वो सब मिथिकल लगता था। Second point, life in the village, grandmother recited prayers expecting that grandson would learn them and it will be beneficial. Contrast, he only listened because he loved her voice and he did not bother to learn them. ये भी generation gap है। Third, grandmother believed in old conventional education, but grandson's parents and grandson preferred modern and western education. ये भी एक conventional education वाला एक generation gap है। इसके points आपको और details मिल जाएंगी, इसको please elaborate करके लिखिएगा। And fourth point, when he was given a separate room, she accepts but resigns. She gives up on being friendly and she did not like it. तो ये भी एक जनरेशन गैप है, सेपरेट रूम वाला आइडिया उनकी जनरेशन और मॉडर्न जनरेशन उसको भी एक्सेप्ट नहीं कर पाई। तो उन्होंने एक्सेप्ट तो किया पर उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने अपना पूरा का पूरा बिहेवियर उसके बाद इंटेंशनली या अनइंटेंशनली वो चेंज हो गया। नेक्स्ट, नाउ वी कम टू द एंड ऑफ द मॉड्यूल. This is the end of phase 3 and I have for you a long question which I wish you to create an answer. Try it yourself. What impression do you get about the author's family and their behavior towards the grandmother? तो कुछ indicators ढूंढिए। ठीक है, it will be a long answer but in case you do not find many points तो it is all right. वैसे तो you should be able to create a long answer but then it will require a very deep understanding and possibly some extrapolation also. Anyways, 60 to 80 words content के points आप इसके लिए easily बना सकेंगे। तो ये नहीं है कि ये क्वेश्चन होली सोली लॉन्ग आंसर में आ सकता है बट डेफिनेटली एक ऐसा एंगल है, कभी कभी बोर्ड में अनएक्सपेक्टेड एंगल्स भी टेस्ट हो जाते हैं। तो लेट्स सी ऑथर की फैमिली और उनके बिहेवियर विद ग्रैंड मदर के लिए आप क्या कंटेंट ढूंढ पाते हैं। गेट बैक टू मी इफ यू रिक्वायर मोर आंसर्स एंड देन वी आर गोइंग टू see that to what part, to what limit you could excel in giving us these answers. So this was all from my side at E-Classes with Shalini ma'am for this chapter, The Portrait of a Lady. Definitely you are going to be able to answer all kinds of questions if you are thorough with what all I've given you in these 3 phases of the chapter. And all that I hope and wish for you is that you keep excelling and keep scoring good marks so that aggregate percentage जो आप लाते हैं ना एग्जाम में एंड में, वो इंग्लिश के रिजल्ट की वजह से या तो वो डाउन आ जाती है, इंग्लिश की वजह से ही वो एक बूस्ट लेती है। तो ये एक ऐसी लैंग्वेज है, इसको थोड़ी सी ट्रिक के साथ अगर आप अटेम्प्ट करें यू विल डेफिनेटली बी एबल टू क्रॉस योर लिमिट्स ऑफ द aggregate target that you've set. So that was all. Thank you so much and have a nice day.